Good afternoon. Good afternoon, everyone. Hakeem, Swati. Good morning, ma'am. सुनाई दे रहा है ना? हाँ, yes, ma'am. Okay. So let's start. Okay, let's start our peak state. First dance and then our peak state. कोई और म्यूजिक चलाओ या वही ठीक है? वो म्यूजिक में भी जोश आ जाता है. As you wish, ma'am. Okay. Okay, let's do some of our exercises. एक्टिवेट करिए अपने स्पाइन को. All right, let's do this one. थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है ये पोजीशन में. All these are stretching for your spine. So spine को जब एक्टिवेट करते हैं तो हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है. This is a physiology changing to make you active and energetic. Okay. Now like सीधे हाथ रख के ऐसे ही 20-25 in anti-clockwise and clockwise काउंट करना है. And now anti-clockwise. Okay. And let's bend a little bit and try to touch our toes. पहले extend करके spine को and then slowly going down. If you have to bend your knees, that's fine. But then touch your toes. This is a spine extension. All right. So now let's do our peak state programming and get ready for our EFT. 2, 1, go. Come on, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast.
Come on, faster, 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 faster. Yes, Yes. come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes. Keep running, keep running, keep running, fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes, yes, faster, faster. Come on, go fast, go fast. Yes, fast. And now stop, stop, stop. Thank you. Yes, very nice, very nice, very nice. Yes, I'm the winner. And you say to Yes, yourself, yes, yes, I'm the winner. winner. I'm the We winner. all I'm are the the winner. winners. Yes. Wow. Thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1. 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast, 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 fast. Yes, come on, fast, 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 fast. Come on. Yes, yes, yes. Run faster, faster. Come on. Still faster. Yes. Yes. Run Yes. faster, faster, Come on, faster, faster. faster, faster. Yes. Come on, fast, fast, fast. You can do it. Come on. Run faster, still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster, faster. Yes. Yes, yes, yes. Come on. Yes. Okay. Yes, yes, Wonderful, yes. wonderful. Stop, stop, stop. Yes, Thank you. I'm Thank the you. winner. And now We all you are say the to winner. yourself, yes, I'm the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. I I'm am the the winner. winner. And now we say to ourselves, I can. I Okay, can, repeat. I will, I can. must. I will, I must. I can, I I will, will, I must. I must. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, Rajan sir, for a beautiful video. Okay. So any special request for EFT? मैं रोज पूछूंगी जब तक आप कभी कभी बताओगे. मुझे एक बात ये भी बतानी थी कि अभी राजन सर का जो मॉर्निंग में सेशन चल रहा है वो भी आप लोग ज्वाइन करो. बहुत ही अच्छा है. 30 मिनट्स जो आगे फ्रंट वो पहले जो स्टार्टिंग में 30 मिनट्स की रोज टेक्निक अलग अलग सिखाते हैं. सुबह में 6 से 6:30 बजे टाइमिंग रहता है, तो अच्छा है वो भी. Yes, yes, very nice. Yes, so it's a reminder for you all. वैसे तो ग्रुप में सब चीजें रोज रोज सर्कुलेट होती है. मैजिक एंड मिरेकल्स 1 एंड मैजिक एंड मिरेकल्स 2 दोनों ग्रुप्स के अंदर डॉक्टर अलका मैंने भी बीच में सर्कुलेट किया. तो आप लोगों को ज्वाइन होना है तो इट्स योर 6 AM विच इज अ गुड टाइम फॉर यू. तो प्लीज ज्वाइन कीजिए. It's going to add so much value in your life regarding all these techniques and everything. So yes, thank you for reminding. साइंटिफिकली मालूम पड़ता है कि ये क्या चीज क्या कैसे काम आती है, वो साइंटिफिकली समझाते हैं. हाँ, तो अच्छा है, बहुत ही बढ़िया. ज्यादा लॉजिकली भी समझ में आता है. राइट. हमारे लॉजिकल माइंड को भी समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमारा साथ देगा ये सब करने में, प्रैक्टिसेस करने में. तो यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. So do join if you can at 6 AM. और उनका ग्रुप है, अगर वापस होगा तो मैं वापस आज सेंड कर दूंगी. ग्रुप का लिंक है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. All right, let's start with EFT. Any topic that you want to cover for EFT? जैसे कल स्वाति का था कि fears आते तो उसमें क्या, तो how did you feel after that, स्वाति? Feeling amazing after that. हाँ, तो ये जैसे ही फियर आता है, मान लो अभी भी वापस कभी कभी अगर आ जाता है, यू हैव टू डू दिस अगेन एंड अगेन. ओके, जब कभी भी फियर आता है आपको EFT करना है. तो जो भी ट्रेसेस होंगे अंदर वो भी धीरे धीरे करके निकल जाएंगे. तो या ओके, सो लेट्स डू. आपका जो सेल्फ लव वाला है ना, मैं रोज 2 बार करता हूँ. 10 एक दिन हो गए सेल्फ लव वाला. तो EFT है ना. वेरी नाइस. वैसे तो मैं कोई भी EFT करवाती हूँ उसमें सेल्फ लव अपने आप इंक्लूड कर ही देती हूँ. जैसे होपोनोपोनो भी हम बहुत सारी चीजों में ऐसे ही करते कि अपने आप से माफी मांगनी बहुत जरूरी होता है. टू फॉरगिव आवरसेल्व्स फर्स्ट, देन ओनली वी कैन फॉरगिव अदर्स. तो अपने आप के लिए सेल्फ लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो चलो वापस आज सेल्फ लव के लिए करते हैं. तो सेल्फ एस्टीम हमारा जो होना चाहिए, कोई भी काम करने के लिए एक जुस्सा, एक कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए, कभी कभी हमारे अंदर नहीं होता है. तो लेट्स डू इट. ओके, सो
even though sometimes I feel that I'm not capable of doing things, or sometimes I feel I won't be able to do it. जो मुझे करना चाहिए होता है या मैं जो मुझे करना होता है, कभी कभी मुझे लगता है, ऐसे विचार आते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी शायद. But I still deeply and completely love, accept and honor myself. Even though sometimes it's difficult for me to take risk in my life and move forward. But I still deeply and completely love, accept and honor myself. Even though sometimes I feel little hurt or sad because somebody else is telling me that I'm not going on the correct path, or I'm not doing what I'm supposed to be doing. ऐसा जब कभी कोई बोलते हैं, तब मैं थोड़ी सी अपने अंदर डगमगा जाती हूँ. But I still deeply and completely love, accept and honor myself. So now let's take a deep breath. अपने हार्ट को एक्सपांड करके डीप ब्रीदिंग कीजिए. And now let's start our sequencing. Even though I feel that I lack something in myself, because of which I cannot do certain tasks, or because of which I cannot attain perfection in certain tasks, or even sometimes I don't even attempt. अपने अंदर मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ और मैं वो टास्क हाथ में भी नहीं लेती हूँ. But I still deeply and completely love, accept and honor myself. Even though sometimes I feel low confident in myself because of other people showing me that I'm not good enough. दूसरों की वजह से कभी-कभी मुझे ऐसा फील होने लगता है कि मैं गुड इनफ यानी कहीं ना कहीं पे पूरी तरह से संपूर्ण नहीं हूँ. एंड उसीलिए मैं अपने अंदर लो सेल्फ एस्टीम ले आती हूँ या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होता है. But I still deeply and completely love, accept and honor myself. जो भी मेरे अंदर ब्लॉकेजेस है, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो मुझे ये कुछ भी अच्छा आगे करने से रोकते हैं मेरी लाइफ में, वो सारे ब्लॉक्स को मैं जाने देती हूँ. जो भी मेरे सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड ब्लॉकेजेस है मेरे माइंड के अंदर,
कहीं ना कहीं पे जो ब्लॉक्स मुझे होल्ड करके रखते हैं कि नहीं तू ये नहीं कर सकती, ये तेरे बस की बात नहीं है, या तू इसमें फेल हो जाएगी, इस तरह के सारे ब्लॉकेजेस को मैं आज पूरी तरह से रिलीज करती हूँ. आई रिलीज all those blockages in from my mind. I release all those resistance from my mind. मेरा माइंड जो मेरे अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, वो सारे रेजिस्टेंस को मैं जाने देती हूँ. वो सारे ब्लॉकेजेस को, माइंड ब्लॉक्स को मैं जाने देती हूँ, जो मुझे ये बताते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ. अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेती हूँ. And I love and accept myself exactly the way I am. I love and accept who I am. I love and honor who I am. And I know Almighty has made me whole and complete. There is no lack in me. There is nothing lacking in me that tells me that I should not be doing it. I am whole and complete. Almighty God has made me whole and complete. मेरे वो अंदर वो सब कुछ है जो मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए. और जो भी मेरे माइंड के अंदर, जो मैंने खुद के ही लिमिटेशंस बनाए हैं बचपन में, या कहीं पे भी मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं पे लिमिट कर लिया, वो जो भी कारण रहे होंगे, वो जो भी इमोशंस रहे होंगे, आज वो सारे इमोशंस को मैं रिलीज करती हूँ, जाने देती हूँ अपने अंदर से. And I allow myself to completely relax. I allow myself to calm down. I allow myself to feel confident and feel good enough, feel worthy enough of having everything good in my life. And I allow myself to love and to be loved. I have all it takes to become a successful entrepreneur or to successful businesswoman or man. I have all it takes to become a very successful person over in general. And I release all my belief system which says I cannot. I release all those negative beliefs जो मुझे कहीं ना कहीं पे रोकते हैं आगे बढ़ने से मेरी लाइफ के अंदर, या मुझे ये दिखाते हैं कि मेरे अंदर कुछ तो कमी है. वो सारे ब्लॉकेजेस को, वो सारे लिमिटेशंस को, वो सारे नेगेटिव बिलीफ्स को आज मैं रिलीज करती हूँ.
I release those blocks. I release those negative emotions and negative beliefs. I release all the limitations. I release all those emotions and feelings which shows that I'm not good enough. Or which shows I'm not worthy enough to have the success in my life. या जो मुझे ऐसा बताते कि मैं फेल हो जाऊंगी, या ऐसे सारे डरों को भी मैं आज निकाल के रिलीज करती हूँ, जो कहीं ना कहीं पे मुझे रोकते हैं आगे बढ़ने से. I release and I deeply and completely love, accept and honor myself. I can become anything, I can do anything, and I can have anything, whatever my heart desires. I can have all the success, I can have all the abundance that my heart desires. And I am born to live an amazing, successful life. So it is, and so be it. Okay, so now let's do our Ho'oponopono again. For the same self-esteem के लिए आज Ho'oponopono करते हैं कि हम good enough हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं. अगर कोई रोकता है हमें अपने आगे बढ़ने से तो वो हम खुद ही है. बाहर की कोई ऐसी चीजें नहीं है. कोई अगर हमने कभी किसी और के ऊपर या हमारे circumstances पे blame किया, that was our own mistake. Otherwise, there is nothing that can stop us from going forward. There is nothing that can stop us from becoming a successful person. Or there is nothing that stops us from defining and fulfilling our life, creating our own life. हम खुद ही creator हैं, हम अपनी life को खुद ही create करते हैं. But वो creation हमें खुद कैसे करना है? अपने अंदर के सारी नेगेटिविटी को धीरे 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 निकाल के अपने और को प्योरिटी की और लेके जाना है. अपने खुद के अंदर जो हमने खुद के अंदर भी जो चीजें बांध के रखी है, मतलब होल्ड करके रखी है, उसको जाने देना है. एंड वी हैव टू अलाउ आवर सेल्फ टू कंप्लीटली एक्सप्रेस आवर सेल्फ क्रिएटिवली एंड अबंडेंटली. तो सब करने के लिए हमें क्या चाहिए? वही हमें एक सेल्फ एस्टीम चाहिए वो सब करने के लिए, जो कहीं ना कहीं पे हम समझते कि हम लैक करते हैं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते. तो सबके लिए आज हम होपोनोपोनो करेंगे, ठीक है? सो यू कीप ऑल ऑफ दिस इन माइंड एंड लेट्स डू इट. आई विल पुट अ लिटिल म्यूजिक. आई थिंक म्यूजिक रखने से आप सब लोगों का क्या कहना है? म्यूजिक से कुछ थोड़ा ज्यादा फायदा हो रहा है, राइट? वी हैव बीन पुटिंग इट फॉर quite a while now. So let's do it again. Celebrate Valentine's Day for less with Kohl's. Get 65% off jewelry, 25% off. इसीलिए मैं अलग अलग टाइप का मेडिटेशन भी करवाती हूँ होपोनोपोनो के टाइम पे, क्योंकि वो मेडिटेशंस आपको बहुत ही इफेक्टिवली हेल्प करेंगे आपकी नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सुनाई दे रहा है ना? हल्का हल्का सही म्यूजिक रखा है मैंने, ज्यादा नहीं. ओके, लेट्स डू. Your feet should be firmly placed on the ground and your spine should be completely straight. अपने आप को ये डिवाइन लाइट से रोशनी से भरा हुआ पाए. आपके पूरे बॉडी के अंदर एक रोशनी सी चमक रही है.
पॉजिटिविटी की रोशनी, यही पॉजिटिविटी रोशनी जो आपकी सारी डार्कनेस, आपकी सारी नेगेटिविटी को हील करती है, डिसॉल्व करती है। Just imagine that golden light entering from your crown chakra. इतनी ज्यादा रोशनी है कि आपको पूरी तरह से रोशन कर दिया है। Excuse me. आपको पूरी तरह से ये लाइट ने पॉजिटिविटी से भर दिया है, प्यार से भर दिया है। Look for your heart expanding completely. वो प्यार को अंदर भरने के लिए आपका दिल पूरी तरह से रेडी है, पूरी तरह से खुला हुआ है। और वही प्यार की रोशनी सबकी ओर हम भेजते हैं। वो हमें तो रोशन करती ही है, बट हमारे सारे लोगों को, हमारे लव्ड वंस को, और पूरी ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं पे रोशन कर रही है। यही आपके दिल की जो लाइट है, प्यार से भरी हुई। Thank you, thank you, thank you, God, for this love and light. Thank you for dissolving all those negative thoughts कि मैं ये नहीं कर सकती, या ये मेरे बस की बात नहीं है, या किसी ने मुझे बोला और मैंने हर्ट अपने अंदर लिया कि मुझे किसी को प्रूव करना पड़ेगा। वो सब के लिए आज मैं डिवाइन शक्ति, डिवाइन पावर से पूरी दिल से माफी मांगती हूँ। मैं अपने आप से, अपने इनर चाइल्ड से आज फॉरगिवनेस मांगती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मैंने ही उसको बहुत बार ऐसी स्टोरी सुनाई कि मैं नहीं कर सकती, या मेरे अंदर कोई कमी है, या मेरे अंदर वो चीजें नहीं है जो सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए, या मेरे अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, या मेरे अंदर लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लैंग्वेज नहीं है। जो भी स्टोरीज मैंने अपने आप को सुनाई जो सच नहीं है, वो सब के लिए आज मैं दिल से फॉरगिवनेस मांगती हूँ। थोड़ा सा सिर झुका के अपने दिल की ओर लेके जाइए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर ऑल दोस स्टोरी टेलिंग जहाँ पे मैंने अपने आप को
कहीं ना कहीं किसी न किसी से कम पाया, किसी से मैंने कंपेयर भी कर लिया कि नहीं वो तो टैलेंटेड है, मुझ में तो ये टैलेंट नहीं है। जब कभी मैंने अपने आप को ये स्टोरी सुनाई वो सब के लिए आज मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर इन माय लाइफ। मेरा इतना साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया। आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपने दिल की धड़कन को सुनने का ट्राई कीजिए। See the vibrations. Feel the vibrations in your body. Our heart's magnetic field is like 5,000 more stronger. Very, very strong magnetic field is around our heart. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Now see yourself as a child. जब आप बहुत छोटे से बच्चे थे, embrace your child. वो छोटे से बच्चे, जो भी छोटी सी अलिफिया है, छोटा सा हकीम है, छोटी सी स्वाति है, अरवा है, छोटी सी प्यारी सी फरीदा है, छोटी सी प्यारी सी जमीला है, छोटी सी प्यारी सी कविता है। अपने आप को वो रूप में लेके अपने आप को हक कीजिए, छोटे से बच्चे को, जब आप छोटे से बच्चे थे। और उसको बताइए कि यस, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। आपको जो पसंद है वो आप कर सकते हो। आपका जो मन करता है वो आप कर सकते हो। आपको किसी रोक टोक की कोई जरूरत नहीं है अपने आप को रोकने की। I am with you. You are safe. ऐसा अपने चाइल्ड को बोलिए, छोटी से प्यारे से बच्चे को। अपने हाथ में लेके उसको बोलिए कि आई लव यू। उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी थोड़ा सा अपने आप को बड़ा होता हुआ देखें, मे बी 10 years old और 9 years old। वो वाले अपने
अपने आप से 10 ईयर ओल्ड अपने आप से भी सेम बोलना है आपको, आंखों में आंखें डाल के कि आई लव यू, यू आर सेफ। आपको जो करना है आप कर सकते हो, आपको जो बनना है आप बन सकते हो। क्या बनना है आपको? आपको क्या पसंद है? What do you like? What do you love doing? अभी अपने आप को मे बी 17-18 years old जब आप थे, वो वाले अपने आप से बात कीजिए। I love you. You are safe. I know you are going through so much. But believe me, everything is well in my world, in our world. You are capable. You are good enough. You are worthy of having everything in life. जो भी आपका मन करता है, ट्रैवल करना आपको पसंद है, आपको बहुत ही बड़ा घर खरीदने में बहुत मजा आएगा, आपको कोई भी अच्छी गाड़ी खरीदनी है, जो भी आपके सपने हैं, सारे सपने इजीली पूरे होंगे, बिकॉज यू आर कैपेबल। आपको जो भी एरिया में सक्सेस चाहिए, यू आर कैपेबल। You can be, do, or have anything that your heart desires, that you desire. हग कीजिए वो अपने ही 20 ईयर सेल्फ को इमेजिनेशन के अंदर, बहुत टाइट वाला हग। उसको बताइए हाउ मच यू लव हर और हिम। I love you so much. I'm sorry, please forgive me. I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. तेरे अंदर मैंने हमेशा कमियां निकाली, हमेशा तुझे कुछ न कुछ ऐसा बोला जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने हमेशा तुझे वो रॉन्ग स्टोरी सुनाई कि तू कैपेबल नहीं है, तुझ में ये कमी है, तेरे अंदर वो चीज नहीं है जो एक सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए, तू टैलेंटेड नहीं है, तेरे अंदर कोई यूनिक टैलेंट नहीं है, तू जस्ट एक रेगुलर पर्सन है, या ऐसी कोई भी स्टोरी मैंने अगर सुनाई है तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। चलो आज हम अपने आप के ही लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं। लेट्स डू अवर ग्रेटिट्यूड। थैंक यू गॉड। मुझे धरती पे लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और मेरे अपने आप के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि बचपन से लेके आज तक मैंने हर दिन कुछ ना कुछ सीखा, आगे बढ़ती रही। छोटी सी बच्ची थी तब मैंने
अपने आप सबसे पहले रोल करना सीखा। धीरे धीरे मैंने क्रॉल करना सीखा। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। फिर मैंने अपने मम्मी पापा की उंगली पकड़ के चलना सीखा। वो अपने खुद की सेल्फ के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर माई मिनी सेल्फ हु ऑलवेज थ्राइव। वो हमेशा थ्राइव करता था कुछ न कुछ सीखने के लिए। मेरा जो मिनी सेल्फ था, धीरे 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 मैंने वो गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सारी लैंग्वेजेस पकड़ना चालू किया। विद इन 2 years मैंने वो लैंग्वेज धीरे 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 अपने अंदर पूरी, अपने जहन के अंदर वो लैंग्वेज मैंने सीख ली। कुछ न कुछ मैं सीखती रही बचपन से लेके आज तक। वो मैंने बोलना सीखा। धीरे 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 वो लैंग्वेज में बोलना सीखा। अपनी बातें मैं बता सकी अपने मम्मी पापा को। उस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धीरे धीरे मैं स्कूल गई। मैंने स्कूल में पढ़ना सीखा। मैंने स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से मैनेज करना है वो सीखा। धीरे धीरे मैं और बड़ी होती गई। मैं समाज के साथ जो भी संस्कार मैंने सीखे, किस तरह से मुझे बोलना है, चलना है, उठना है, बैठना है, वो सब समाज के हिसाब से, मेरे घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से मैं सीखती गई। और पढ़ाई में मैं और डीपर जाती गई। धीरे 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 मैंने साइकिल चलाना सीखा। घर की कोई कोई स्किल्स मैंने सीखी। घर के कोई कोई काम सीखे जो भी उस टाइम पे करना पड़ता था। मुझे याद है वो पानी के घड़े भर भर के भी कभी कभी लाते थे जब घर में पानी नहीं होता था। वो हैंडपंप चलाना भी सीख जाते थे। बहुत कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग सीख गए। कुछ लाइफ ने सिखा दी, कुछ मम्मी पापा ने सिखाई, कुछ एनवायरनमेंट ने सिखाया। वहां से ही कुछ ऐसी भी स्टोरीज लेते गई मैं कि कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ कम हूँ। बट स्टिल उस सब के बावजूद मैं आगे बढ़ती रही। मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करके आगे बढ़ती रही। वो अपने सेल्फ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कुछ भी नेगेटिविटी आती थी, सिचुएशंस आती थी, मैं डर भी जाती थी कभी कभी। बट फिर वापस मैं अपने आप को ट्रैक पे ले आती थी। सारी चीजों के बावजूद मैं आगे बढ़ती रही। कभी कुछ हेल्थ ब्रेकडाउन आता था, कभी कुछ ये, कभी कुछ, बट आई kept learning from life experiences। मैं सीखती रही जो कुछ मुझे लाइफ सिखाना चाहती थी। कभी कभी सीखी, कभी कभी नहीं भी सीखी होगी, बट आई स्टिल kept going forward।
हमेशा एक उमंग के साथ, एक होप के साथ मैं आगे बढ़ती रही, एक एम्बिशन के साथ मैं आगे बढ़ती रही हमेशा, कि मैं लाइफ में जरूर मुझे कुछ करना है। कुछ तो क्रिएटिव जरूर मुझे करना है। ऐसे मैं आगे बढ़ती रही, सीखती रही। मैंने डिग्रीज भी हासिल की कि शायद उसकी वजह से मेरी लाइफ और बेहतर हो जाएगी। फिर मैं जॉब भी इसलिए करने लगी कि मैं कुछ सीख पाऊं। अलग अलग जगह पे मैंने जॉब की, उसमें भी सीखती रही, गिरती रही, आगे बढ़ती रही। शादी के बाद पूरे नए एनवायरनमेंट में कैसे एडजस्ट होना है वो सीखती रही। कुछ और नई स्किल्स हासिल की अपने जीवन को अच्छे से चलाने के लिए, घर को रखने के लिए, खाना बनाना, किचन, ये सब सीखती रही, आगे बढ़ती रही। अकेले कैसे सब पूरा परिवार मैनेज करना है वो सीखती रही। कैसे अपनों को साथ में रखना है, सबकी जरूरियातों का ध्यान में रखना है, सब कुछ मैंने किया। जो भी उस टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल था वो सब कुछ मैंने किया। अपने परिवार के लिए भी मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। अपने मम्मी पापा की ओर या भाई बहन की ओर, अपने इन-लॉज की ओर, अपने स्पाउस, अपने बच्चों की तरफ जो भी मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने पूरे दिल से वो ट्राई किया कि मैं पूरी जिम्मेदारियों को निभाऊं, उनकी जरूरियातों को पूरा कर सकूं। बच्चों को बड़ा कैसे करना है मुझे नहीं पता था, बट मैंने स्टिल किया। हाँ, वो सब लोगों का साथ था मेरे साथ, बट कई सारी चीजें ऐसी थी जो मुझे ही सीखनी पड़ी, मतलब मुझे ही सीखनी थी। वो सब करके मैं आगे बढ़ती रही। बहुत कुछ मैंने लाइफ से सीखा। वो सब के लिए आज मैं अपने आप के लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। Thank you Olivia for going through all this, the whole life. Thank you for being such an ambitious girl. Thank you for being such a loving and responsible adult. Thank you for always spreading happiness and joy among others. Thank you for being light in someone else's life. Thank you. Okay, now let's do some of the mirror affirmations and we will resort to our book. Okay. हाँ, थोड़ा मनी के लिए भी पहले शुक्राना कर लेते हैं, हमारे चेक के लिए, मनी की डॉलर बिल के लिए।
So thank you so much for all the money that I have been given throughout my life. उस सारे पैसों के लिए जो बचपन से लेके आज तक हमेशा मुझे मिलते आए हैं, सारे पैसों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much God for this money to fulfill my dream. जो मेरा सपना है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Thank you so much. एक नजर अपने ड्रीम्स पे भी मारना है तो कर लीजिए. Amazing. Okay. So now let's talk to ourselves in our beautiful mirror. I love you, Olivia. I really love you. You are the best child of God. You are the best creation of God. And you are the creator of your own life. Yes. You are the magnet for magics and miracles in your life. And you are a very loving child of God. Yes. You are the one. God chose you to spread that love and light in everyone else's life. You are the greatest soul ever born on this planet. There's a perfect wisdom in my heart, and I follow my inner guide. I follow my intuition. I am capable. I can do, be, and have anything that my heart desires. I'm worthy of having everything. I'm worthy of success. I'm worthy of wealth, prosperity. I'm worthy of achieving all the good things in life. And I'm capable. Yes. I have a very high self-esteem and very high self-confidence to achieve my dreams and desires. And to be a successful person, I have all it takes to become a successful person. I'm very persistent and self-reliant in whatever I do. I build new good habits in my life. And I love myself. I love you, Olivia. I really love you. You are the best creation of God. Okay, so now let's start our book reading session. The true nature of space and time. तो यहाँ से शायद पढ़ना था हमें. Let me see. हाँ, यहीं से. Anybody wants to read? Hakim, you want to read as you are home today? Okay. Or Swati, you can start if Hakim is not there. Hakim sir is want to read. Okay. Hakim, you can start reading from The True Nature of Space and Time. True nature of space and time. Now consider this. No, we cannot hear you. You have to take your mic a little closer. आ रहा है आवाज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही. Let me see if my mic is 100%. सबको सुनाई दे रही है हकीम की आवाज? No, ma'am. No, right? Yeah, so
Can I read? Sorry. Yeah, you can start reading unless he figures out. Yeah. The true nature of the space and time. Now consider this: if there were nothing but silence, it would exist for you. You wouldn't know what it is. Only when sound appears does silence come into being. Similarly, if there were only space without any objects in space, it wouldn't exist for you. Imagine yourself as a point of consciousness floating in the witness of space. No Vastness of stars, space. vastness of space. No stars, no galaxies, just emptiness. Suddenly, space wouldn't be vast anymore. It would not be there at all. There would be no speed, no movement from here to there. At least 2 points of reference are needed for distance and space to come into being. Space comes into being the moment the one becomes two, and as two becomes the 10,000 things. As Lord Lortes calls the manifested world, space becomes more and more vast. So world and space arises simultaneously. तो यहाँ पे वही बताया कि अगर आप मान लो आप खाली कॉन्शियसनेस हो और एम्प्टीनेस के अंदर हो, तो अभी ये स्पेस हमें कितना बड़ा लगता है कि वास्टनेस है स्पेस के अंदर, बट अगर हम अकेले ही है तो फिर कुछ वास्टनेस है ही नहीं। ऐसा यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं। अगर साइलेंस भी कब बीइंग में आता है, जब कुछ साउंड होता है। अगर साउंड ही नहीं है तो साइलेंस बीइंग में कैसे पता चलेगा कि साइलेंस है वहां पे। उसी तरह से स्पेस की वास्टनेस तभी आती है जब वन बिकम्स टू, टू बिकम्स 10,000 थिंग्स। जो लाओ त्जू ने बोला है कि मैनिफेस्टेड वर्ल्ड के अंदर स्पेस बिकम्स मोर एंड मोर वास्ट, क्योंकि मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है इसलिए हमें स्पेस बहुत बड़ा दिख रहा है। अदरवाइज देयर इज नो वास्टनेस इन द स्पेस। यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि हम खुद ही स्पेस ही है और कुछ नहीं है। तो हम ये स्पेस के अंदर हमने ही ये मैनिफेस्टेड वर्ल्ड बनाया है, यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं। लेट्स रीड फर्दर। Nothing would be without space, yet space is nothing. Before the universe came into being, before the Big Bang, if you like, there wasn't a vast empty space waiting to be filled. There was no space, as there was no things. There was only the unmanifested, the the one. When the one became the 10,000 things, suddenly space seemed to be there and enables the many to be. Where did it comes from? Was it created by God or to accommodate the universe? Of course not. Space is no thing. It was never created. तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज वो बता रहे हैं। आई डोंट नो कि हम अपने माइंड से ये अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बट यहाँ थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई करते कि वो क्या बता रहे हैं। कि नथिंग कुड बी विदाउट स्पेस, येट स्पेस इज नथिंग। यानी स्पेस कुछ नहीं है एक्चुअली। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिग बैंग आया, यूनिवर्स केम इनटू बीइंग, बिफोर बिग बैंग यू फील लाइक इट वाज एन एम्प्टी स्पेस। आपको लगता है कि वहां पे स्पेस था इसलिए बिग बैंग आया और इसलिए यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एकदम से जैसे when one became the 10,000 things, suddenly space seemed to be there। यानी स्पेस था नहीं इसलिए वो हमें अभी दिख रहा है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज वी ऑल केम फ्रॉम वन सोर्स। यानी एक ही सोर्स में से इतने सारे हम बन गए, हमारे फ्रेगमेंट्स बन गए। अदरवाइज वी आर ऑल वन एंड देयर इज नो स्पेस। यहाँ पे वो वही बताना चाह रहे हैं। तो लेट्स रीड फर्दर। Go out on a clear night and look up at the sky. The thousands of stars you can see with the naked eyes are no more than an infinity हाँ, infinitesimal fraction of what is there। over 100 billion galaxies can already be detected with the most powerful telescopes. Each galaxy an Iceland universe with billions of stars. Yet what is even more awe-inspiring
is the infinity of space itself, the depth and stillness that allows all of that all Magnificent. of that magnificence to be. Nothing would be more awe-inspiring ओ and इंस्पायरिंग यानी बहुत ज्यादा, हम जैसे ओ इंस्पायरिंग बोलते हैं ना, बहुत ही विशाल भव्य, मतलब हमें एकदम ऑ स्ट्रक बोलते हैं ना, कभी भी हम एकदम भक्के भक्के रह जाते हैं, वो इस टाइप का. ओके, लेट्स रीड. and majestic than the inconceivable vastness and stillness of space. And yet, what is it? Emptiness, vast emptiness. या रीड फर्दर. What appears to us as space in our universe, perceived through the mind and the senses in the unmanifested itself, externalized. It is the body of God, and the greatest miracle is this, that stillness and vastness that enables the universe to be is not just out there in space, it is also within you. When you are utterly and totally present, you encounter it as the still inner space of no mind. Within you, it is vast in depth, not in extension. Spatial, spatial extension is ultimately a misperception of infinite depth, an attribute of the one transcendently reality. Transcendental reality. So what appears to us as a space in our universe perceived through mind and senses is unmanifested itself. तो जो भी हम अभी परसीव करते हैं हमारे खुद के यूनिवर्स के अंदर, यहाँ पे क्या बोला है कि नेकेड आई से हम तो खाली 1000 स्टार्स देख सकते हैं, बट वहां पे तो 100 बिलियन गैलेक्सीज कैन ऑलरेडी बी डिटेक्टेड with the most powerful telescopes. Each galaxy an island universe with billions of stars. एक एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स है, यानी कितनी ज्यादा वास्टनेस है. जो भी इंफिनिटी ऑफ स्पेस है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओ इंस्पायरिंग है. जो डेप्थ है, स्टिलनेस है, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते. All of that magnificence to be. Nothing could be more awe-inspiring and majestic than the inconceivable vastness and stillness of space. जिस तरह से वास्ट है ये स्पेस, हम उसको कंसीव भी नहीं कर सकते. इट्स इनकंसीवेबल. उसको हम अपने माइंड से समझ भी नहीं सकते. इतना बड़ा वो एम्प्टीनेस है, वास्ट एम्प्टीनेस. और हमें जो भी स्पेस अपीयर हो रहा है वो भी हमारे ही माइंड के थ्रू परसीव्ड है. जो externalized है, it is the body of God, and the greatest miracle is this, that stillness and vastness that enables the universe to be is not just out there in space. वो खाली स्पेस में नहीं है, बट वो ही वास्टनेस हमारे खुद के अंदर भी है. वो यहाँ पे वही बताना चाह रहे हैं. जो वास्टनेस हम इनकंसीवेबल है, हम जो कंसीव भी नहीं कर सकते, वही वास्टनेस हमारे अंदर भी है. विद इन यू. It is also within you. So amazing, right? So amazing. जब आप utterly and totally present होते हो, you encounter it as a still inner space of no mind. Within you, it is vast in depth, not in extension. आपके अंदर जब no mind वाला जब आप state में जाते हो, तब ये जो depth है आप उसको feel कर पाओगे. And that is the transcendental reality. जो बोल सकते हैं कि बुद्धा है या फिर जीसस है, उन लोगों ने ट्रांसेंडेंटल रियलिटी को फील किया हुआ है, और ये एकार्ट ने भी किया है, इसीलिए वो ये बुक लिख पाए हैं. तो लेट्स रीड. अभी यहाँ पे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है आइंस्टाइन के रिलेटेड, तो लेट्स रीड. According to Einstein, space and time are not separate. I don't really understand it, but I think he is saying that time is the fourth dimension of space. He calls it the space-time continuum. Yes, what you perceive externally as space and time are ultimately illusory, but they contain a core of truth. They are the two essential attributes of God, infinity and eternity, perceived as if they had an external existence outside you. Within you, both space and time has an
inner equivalent that reveals their true nature as well as your own. Whereas space is the still, infinitely deep realm of no mind, the inner equivalent of time is presence, awareness of the eternal now. Remember that there is a no distinction between them. When space and time are realized within as a unmanifested, no mind and presence. External space and time continue to exist for you, but they become much less important. The world too continues to exist for you, but it will not bind you anymore. तो यहाँ पे वही बताना चाह रहे कि जो वास्टनेस, जो इन्फिनिटी एंड इटर्निटी, ये जो गॉड की क्वालिटीज है वो सबके अंदर प्रेजेंट है, वो हम परसीव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ अवर माइंड. तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन देम. यहाँ पे आइंस्टाइन ने पूछा है, मतलब आइंस्टाइन ने जो थियरी हमें बताई हुई है टाइम एंड स्पेस की, किसी ने पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे टाइम एंड स्पेस एक ही चीज है. तो यहाँ पे एकार्ट ने बताया कि यस, टाइम एंड एग्जिस्ट एक्सटर्नली, वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब if they had an external existence outside of you, within you both space and time have an inner equivalent that reveals their true nature as well as your own. अगर हम within you यानी हमारे अंदर देखेंगे तो वहां पे टाइम एंड स्पेस दोनों एग्जिस्ट करते हैं एज अ वन. यानी जो स्पेस है हमारे अंदर, द स्टिल इनफाइनाइटली डीप रेल्म ऑफ नो माइंड. यानी अगर नो माइंड है तो बहुत डीप है, एंड माइंड एंड स्पेस, आई थिंक दे व्हाट इज ही इज ट्राइंग टू से इज कि लाइक वो एक ही है. वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं बट इंटरनल वर्ल्ड में कुछ नहीं है, इंफिनिटी है, इटर्निटी है, दैट्स इट. तो लेट्स रीड फर्दर. Hence, the ultimate purpose of the world lies not within the world, but the transcendence of the world. Just as you would not be conscious of space if there were no objects in space, the world is needed for the unmanifested to be realized. You may have heard the Buddhist saying, if there were no illusion, there would be no enlightenment. Enlightenment. It is through the world and ultimately through you that the enlightenment. It is through the world and ultimately through you that the unmanifested knows itself. You are here to enable the divine purpose of the universe to unfold. This is how important you are. तो बस हमें तो खाली इतना ही समझना है यहाँ पे, जितना हो सके इतना डेप्थ में, कि ये जो हमें ये जो लाइफ मिली है, जो भले इल्यूजन है, बट इस इल्यूजन के सिवा हम परमात्मा में लीन नहीं हो सकते. मतलब यूनिवर्स के अंदर हम अनमैनिफेस्टेड, जो हम यहाँ पे इसको बोलते हैं, उसके अंदर हम जा नहीं सकते. एनलाइटनमेंट नहीं मिल सकता जब तक हम ये इल्यूजरी वर्ल्ड के थ्रू नहीं जाते. इसीलिए हम सब लोग यहाँ पे आए हैं. द अनमैनिफेस्टेड नोज इटसेल्फ थ्रू यू, यानी आपके अंदर से ही वो अपने आप को, डिवाइन जो पर्पस है वो अपने आप को आपके थ्रू अनफोल्ड करता है, यानी यूनिवर्स. एंड दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट यू आर. हम इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यूनिवर्स का जो पर्पस है हमें ये दुनिया में लाने का, या जो भी हमें वापस अपने घर जाने का, यानी हम जहाँ से आए हैं जिस सोर्स में से, उसका ये जब तक हम ये पर्पस फुलफिल नहीं करते तब तक हम वो हमारा जो रिटर्न है घर जाने का, वो रिटर्न हम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे वही बताना चाह रहे कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, बिकॉज द यूनिवर्स जो डिवाइन पर्पस है वो आपके थ्रू ही कंप्लीट होगा. सो कॉन्शियस डेथ, लेट्स रीड दैट. There are countless accounts by people
Apart from dreamless sleep, which I mentioned already, there is a one other involuntary portal. It opens up briefly at the time of physical death. Even if you have missed all the other opportunities for spiritual realization during your lifetime, one last portal will open up for you immediately after the body has died. There are countless accounts by people who had a visual impression of this portal as radiant light and then returned from what is commonly known as near death experience. Many of them also spoke of a sense of blissful serenity and deep peace. In the Tibetan book of the dead, it is described as the luminous splendor of the colorless light of emptiness. Wow. इस पेज जरा scroll कीजिए. Which it says is your own true self. वहां से पढ़ना. दिखाई दिया? Which it's yes ma'am. Which it says is your own true self. This portal opens up only very briefly, and unless you have already encountered the dimension of the unmanifested in your lifetime, you will likely miss it. Most people carry too much residual resistance, too much fear, too much attachment to sensory experience, too much identification with the manifested world. So they see the portal, turn away in fear, and then lose consciousness. Most of what happens after that is involuntary and automatic. Eventually, there will be another round of birth and death. Their presence wasn't strong enough yet for conscious immortality. या तो यहाँ पे वही बात की है कि जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होते हैं, यानी ये जहाँ पे ये हमारे जो स्पिरिचुअल पोर्टल्स की बात हुई है, तो स्पिरिचुअल पोर्टल में से एक ये भी इनवॉलंटरी पोर्टल होता है. जब आपका डेथ होती है तब ये पोर्टल ओपन होता है. यानी बहुत सारे लोगों ने ये वाला एक्सपीरियंस किया हुआ है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, जहाँ पे पूरा ब्लिसफुलनेस है, पीस है, डीप पीस, एक लाइट होती है, प्यार होता है और कुछ नहीं. बहुत सारे लोगों ने इसको कहीं ना कहीं पे पूरे इंटरनेट पे तो बहुत सारे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के वीडियोस किसी न किसी ने अपलोड किए हुए होते हैं. वो लोग ये भी बताते हैं कि कैसे पोर्टल्स ओपन होते हैं और कैसे हम अगर स्पिरिचुअली हम अगर अपने आप को रियलाइज कर लेते, फिर ये जो दुनिया के अंदर जो हम इतना आइडेंटिफाई हो चुके हैं सब चीजों के साथ, वो उसके सामने कुछ नहीं है, उसका रियलाइजेशन हो जाता है. एंड अंदर से एक ब्लिसफुल सेरेनिटी होती है, डीप पीस विद इन होता है. वो तब यानी नियर डेथ से लोग जो वापस आते हैं वो लोग वहां पे वो एक्सपीरियंस करते हैं. और कई लोग इवन डेथ के टाइम पे भी इतना ज्यादा बर्डन लेके चलते होते हैं, फियर है, फिर इतनी ज्यादा आइडेंटिफिकेशन विद द सेंसरी वर्ल्ड, यानी इतना ज्यादा अटैचमेंट्स सब चीजों के साथ, मे बी मनी के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, यानी इतनी सारी चीजों के साथ जो अटैचमेंट होता है, उसकी वजह से वो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन इवन डेथ के टाइम पे भी नहीं कर पाते. यहाँ पे वही बताया है. सो लेट्स रीड फर्दर. फिर वो वापस वही वो चक्कर में लगते हैं, वापस बर्थ एंड डेथ वाले चक्कर में घुस जाते हैं. तो या एवरी पोर्टल यहाँ से रीड करते हैं. लेट्स सी. मैम ऊपर का थोड़ा है. हाँ हाँ वहां से रीड. हाँ जी हाँ. So going through this portal does not mean in annihilation. As with all the other portals, your radiant true nature remains, but not the personality. In any case, whatever is real or of true value in your personality is your true nature shining through. This is never lost. Nothing that is of value, nothing that is real is ever lost.
approaching death and death itself, the dilution of the physical form is always the great opportunity of spiritual realization. This opportunity is tragically missed most of the time, since we live in culture that is almost totally ignorant of death, as it is almost totally ignorant of anything that truly matters. Every portal तो is a हम ऐसे portal of कल्चर death, में रहते हैं the कि हमें death इस of पे the false self. हाँ, False self. When you go through it, you case cease to to derive. derive to derive मैम रीड करूं. हाँ हाँ करो. You choose to derive your identity from your psychologically mind made form. You then realize that death is an illusion, just as your identification with form was an illusion, the end of the illusion. That's all the death is. It is painful only as long as you cling to illusion. यानी डेथ इतनी पेनफुल नहीं है, हम उसको अपने माइंड में उसका फियर है, इसलिए हमें वो इतनी पेनफुल साउंड होती है, अदरवाइज इट्स नॉट. एंड जैसे ही डेथ इज एन इल्यूजन का जो इल्यूजन है उसकी डेथ होती है, एंड ऑफ इल्यूजन. जो हम ये पूरी लाइफ को इल्यूजन समझ के ही, एक्चुअली इल्यूजन ही है, बट हम उसको रियल मान के बैठ गए, और हमारा जो ट्रूली जो चीजें हमें मैटर करती है वो पूरी तरह से हम इग्नोरेंट हैं उसके बारे में. तो वी लिव इन अ कल्चर दैट इज ऑलमोस्ट टोटली इग्नोरेंट ऑफ डेथ. डेथ के लिए भी हम इग्नोरेंट है, और सारी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए हम पूरी तरह से हमें कुछ नहीं पता है, जबकि हमारे लिए ये सारी चीजें इतनी मैटर करती है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. बट हम ऐसी चीजों में अभी उलझे पड़े हैं जो बिल्कुल मैटर नहीं करती हमारी लाइफ में. बट एनीवेज यहाँ पे इतना ही समझना है कि डेथ से डरने की बजाय डेथ इज अनदर पोर्टल फॉर अस टू रियलाइज द स्पिरिचुअल सेल्फ. तो ये हमें यहाँ पे खास मेन चीज जो यहाँ पे लेनी थी वो यही है. एनलाइटेंड रिलेशनशिप्स, अभी ये पूरी रिलेशनशिप्स के बारे में चैप्टर है कि रिलेशनशिप्स को कैसे हम इसके अंदर लाइक हमारे अवेयरनेस में रह के कैसे हम अपनी जो रिलेशंस होती है, मेन रिलेशंस लाइफ के अंदर, उसमें उसको हम लाइफ में कैसे जॉयफुल बना सकते हैं, उसके अंदर भी कैसे हम साल्वेशन पा सकते हैं. तो या लेट्स व्हाट इज द टाइम. ओके, एक्चुअली लेट्स कंक्लूड फ्रॉम हियर. We will read from here tomorrow. Enlightened relationships. Mostly, I think our book is going to finish. We are almost 1/4 is now remaining. I think 1/4 book is remaining. So yeah, let's stop here. So thank you so much. Thank you for your presence. Thank you for your commitment to these practices. Thank you so much. Love, light, and abundance to all of you. एंड एक्चुअली कल जैसे यहाँ पे अभी स्नो स्टॉर्म तो है ही है, आइसिंग कंडीशन भी है, आइसी कंडीशन है यहाँ पे. तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है